And please welcome Mr. Rajat Srivastava from EEPC, Regional Director from EEPC Mumbai. Welcome to VI, sir. Mr. Rajesh Modak, he is Branch Manager of ECGC Nagpur, which helps us in growing exports. Welcome to VI, sir. Yeah, and Mr. Yogesh Deshpande. Yeah, welcome, sir. I won't take much time, and I would request Mr. Pratik Tapadia to give the welcome address. Good morning, all. On behalf of VIA, we welcome you all for this wonderful opportunity. Nagpur recently has been a thriving hub for exports, and every time we interact with someone who's exporting, we realize that there are certain apprehensions and issues that all of us face in our day-to-day life. So this is a wonderful opportunity for all of us to interact and hear our joint DGFT, Mr. Jha, who will give the first address of the day today. Followed by that, we'll have Mr. Rajat Srivastava from EEPC India. So he is here to describe about the scheme of Niryat Bandhu, and then he'll also, I think, briefly talk about the India Sourcing Show, which is I think around the corner. So some of us over here who have engineering goods and we are looking for an export market, this could be a good opportunity for all of us. Followed by that, we'll have Mr. Rajesh Modak from ECGC. Again, it's a pressing concern for most of us that every time we are exporting, what kind of means of finance that could be available, how do we ensure our payment. So it's going to be a good opportunity for all of us. And then we will have Mr. Yogesh Deshpande, who's the Regional Head Sales Trade ICICI. So I think all of these subjects all together are a perfect mix for all of us. So without taking any further time, I would request Sri A.K. Jha ji to begin his address, please. Good morning, every delegates. My main speaker, Mr. Gopal Krishnan, FTDO, will address all the schemes of foreign trade policy and procedure, which is available for all exporters. As you know, the export of India is declining day by day. Every month we are seeing figure in every sector. Most of export is declining in this global competitive world. So government has announced so many schemes for exporter to give incentive like China and other countries, which Mr. Gopal Krishnan will address in his. In foreign trade policy, this program is not meant for expanding export. It is just a program in which we are preparing prospective entrepreneurs. जो अभी इसमें इंटर नहीं किए हैं इस फील्ड में, उनको ये बताया जाए कि कैसे हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हमारे इसमें है, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है. क्योंकि एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स जो हैं उनकी समस्याएं तो रोजाना हम लोग को मेल से या डेली इंटरेक्शन से मिल ही जाता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन उनको कुछ ABCD नहीं पता है.
जिसके बारे में हमारे एसोसिएशन के यहाँ पर विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन या और भी लोग जो हैं कंसल्टेंट वगैरह गाइड करते हैं। तो ये फोरम जो है आप लोगों के बीच एक जस्ट स्कीम के बारे में बताएगा और साथ में हमारे मिस्टर ईसीजीसी के मोडक साहब हैं या बैंक वाले हैं, वो लोग भी बताएंगे कि इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ईसीजीसी आपको जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आप लोग को इंश्योरेंस कवरेज देती है कि अगर सपोज दैट आपने एक्सपोर्ट किया और रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने इनकी पॉलिसी ले रखी है तो एक तरीके से एक सर्ट मेजर लॉस से आपको बचा देते हैं। तो वो बताएंगे हमारे मोडक साहब। बैंक वाले बताएंगे आपको कि बैंक में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और कैसे ईबीआरसी लोड करना है नहीं करना, ये सारी बातें बैंक वाले लोग बताएंगे। तो आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मिस्टर गोपाल कृष्णन से आग्रह करता हूं कि आके स्कीम्स के बारे में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, बीच बीच में जहां हम लगेगा कि ये कुछ छूट रहा है इनसे तो मैं बीच में इंटरप्ट करके बताऊंगा। आइए गोपाल सर। दबाओगे ना तो आप आगे बढ़ जाओगे। बस ये दबाना सिर्फ अगली स्लाइड के लिए। दबा दे बटन। बस ठीक है। सब सुन रहे हैं? लास्ट एबल टू हियर क्लियर? मैं हिंदी में भी बोलूँगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा बीच बीच में, जैसे सुविधा होगी, ताकि सबको समझ में आना चाहिए। हम लोगों का ऑफिस डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये पहले चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के ऑफिस के नाम से जाना जाता था। डीवैल्यूएशन के पहले 1991, जुलाई 1991 के पहले, मतलब उस समय सारे कंट्रोल्स थे, एक्सपोर्ट में कंट्रोल, इंपोर्ट में कंट्रोल। फिर बाद में 1991 में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, द ऑफिस नेम वाज चेंज्ड। हम लोग कंट्रोल क्यों करना है, वाई वी शुड कंट्रोल, वाई द ट्रेड शुड नॉट बी फ्री। ट्रेड फॉरेन कंट्रीज से, हमारे कंट्रीज से, हर चीज को फ्री करने के लिए, लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन करने के लिए दिस ऑफिस बिकेम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन। डायरेक्टरेट जो डिक्शनरी मीनिंग ये होता है उसका सिंपल सा कि हम आपको डायरेक्ट करेंगे आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सुविधा देगी। हमारा ऑफिस आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है पूरे ऑफिस का दिल्ली में है।
नीचे वाला और ये डीजीएफटी का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन। हमको सिर्फ हमारा जोन देखना है, हमारा जोन वेस्टर्न जोन है और वेस्टर्न जोन जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मुंबई है। उसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो उनके पावर्स में रहता है वो बराबर आता है। उसमें महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, ये सारी चीजें जो है ये सारे उसमें आते हैं। कोई भी ट्रेड या पॉलिसी बनाने के लिए, प्रोसीजर्स बनाने के लिए एक एक्ट होता है जिसको हम लोग उस एक्ट के तहत हम लोग उसको बनाते हैं और फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट एंड रूल्स के तहत ये हम लोगों का पूरा पॉलिसी कवर अप होता है। और ऑल द पावर्स आर डिराइव फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें हम लोगों का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रोसीजर्स, सारी चीजें कवर अप होती है और उसके हिसाब से हम लोग उसको ये करते हैं। अब गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 साल में ये स्टार्ट किया कि काफी लोग हैं जिन लोगों को दे डोंट नो व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सबको पता है इनकम टैक्स क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, आरओसी क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स क्या होता है। अगर किसी से भी पूछो, अगर मैं किसी को सिंपली बोल दूं कि मैं डीजीएफटी में हूं तो आदमी चुपचाप चलता बनता है। दे डोंट नो व्हाट इज डीजीएफटी। सो आवर ड्यूटी अंडर दिस निर्यात बंधु स्कीम लास्ट 1-2 साल में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि पीपल शुड मेड अवेयर ऑफ आवर पॉलिसी, आवर प्रोसीजर्स, कि ये डीजीएफटी क्या है, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज देयर प्रोसेस। इनकम टैक्स किसी से भी पूछो सब बता देते, बट डीजीएफटी मैं भी कभी कभी होता हूँ, मैं अगर किसी को बोलता हूँ मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में हूँ तो आदमी चुपचाप चलता बनता है। उसमें से 10 में से एक आदमी ऐसा, साहब आप डीजीएफटी में, जब मेरे को डीजीएफटी बोलते तो आई थिंक यस ही नोज अबाउट द पॉलिसी प्रोसीजर्स। ये हम लोगों का एक बड़ी विडंबना है कि हमारे इसके बारे में, इसीलिए ये निर्यात बंधु स्कीम शुरू किया है जिसके तहत हम एक कॉमन आदमी को राइट फ्रॉम द बॉटम, जो कम से कम जो ट्रेडर है, जो दुकानदार है, उसे भी पता चले कि मैं भी पॉलिसी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। नाउ व्हाट इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। द मोमेंट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोचते हो या बन जाता है, आप किसी को पता नहीं रहता, तुरंत चले जाते हैं, कस्टम्स में चले गए, एक्साइज बैंक में चले गए तो बैंक वाले वहां से बोलते हैं साहब आपको तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेके आइए। फिर उस समय वो ऑफिस ढूंढता है कि ऑफिस किधर है। वो कभी जाएगा विदर्भ एसोसिएशन में, किसी कहीं और जाएगा, इधर जाएगा, कि सबको पता चलना चाहिए। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कोड नंबर इज द मैंडेटरी एंड फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द डीजीएफटी। ये इससे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। पिछले 1-2 साल में वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑल्सो। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप लोग फाइल कर सकते हैं एंड इन द मीन टाइम आप मैनुअल एप्लीकेशन भी, अभी तक उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अगर किसी को ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको एप्लीकेंट को खुद करना है, बिकॉज उसके जो डाटा जो भी भरने होते हैं, जो कुछ होता है वो सब उसी को पता रहता है, इसलिए ही हिमसेल्फ हैज टू फिल अप द एप्लीकेशन ऑन हिज ओन। और 1 IEC 1 पैन, यू हैव टू सी दैट योर पैन कार्ड, एक IEC 1 पैन। और कभी कभी क्या होता है, कोई सोचता है कि चलो मैं दूसरी जगह, आज मैं नागपुर में, महाराष्ट्र में नागपुर ऑफिस से IEC ले लिया, अब मुझे चेन्नई में भी एक ऑफिस खोल के मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। मेरे इधर से तो इशू हो जाएगा IEC जॉइंट डीजीएफटी नागपुर, चेन्नई वाला भी IEC इशू कर देगा, उसी पैन के बेस में वो भी इशू कर देगा। बट एक लास्ट मोमेंट में जब आप कस्टम्स में जाओगे, कस्टम्स में आप हेल्ड अप हो जाओगे। जब आपका इंपोर्ट क्लियरेंस आएगा वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक पैन में एक ही IEC यूज होता और ये कस्टम्स के साइड में पकड़ में आता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और उस IEC में आप में कोई मेजर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक बैंक सर्टिफिकेट है, आपका रजिस्ट्रेशन, फर्म के नाम के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो टेक, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। एवरीबडी कैन टेक द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर और कोई उसमें बैरियर्स नहीं है। देयर इज नो बैरियर्स फॉर द टेकिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर एंड दिस इज द मेजर डॉक्यूमेंट, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द डीजीएफटी। यू हैव टू, इसी के बेस में आप आगे जो जो डिपार्टमेंट्स में जाएंगे ये चीजें उसमें कैरी फॉरवर्ड होती है, उनको वो सब चीजें बताना पड़ेगा आपको। इट्स ओनली वी इशू दी IEC नॉर्मली विद इन 24 आवर्स। अगर एप्लीकेशन वेल इन ऑर्डर है, इवन इन माई ऑफिस ऑल्सो अक्रॉस द टेबल एप्लीकेशंस चेक होते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है उसी समय बता देते हैं, और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो मेरे से आके मिलकर, मैक्सिमम आई ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। अब
व्हाट इज एक्सपोर्ट? एनी टेरिटोरियल, हमारे कंट्री के टेरिटोरियल एरिया से कोई भी आइटम, आइदर इट मे बी फिनिश्ड गुड, इट मे बी कैपिटल गुड्स, इट मे बी रॉ मटेरियल, इट मे बी इन द लिक्विड फॉर्म, जो हमारे एयर, लैंड और सी, हमारे इंडियन टेरिटरी बॉर्डर के बाहर जाता है, उसको हम लोग एक्सपोर्ट डिफाइन करते हैं, और वो एक्सपोर्ट आउट ऑफ द कंट्री जाने के लिए। द सेम थिंग इज विद द इंपोर्ट ऑल्सो। जो भी मटेरियल आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स, कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी किसी भी चीज का, जब हमारे इंडियन टेरिटरी में आता है, दैट कम्स अंडर द कस्टम्स परव्यू। जैसे आपका बाय लैंड हो, बाय सी हो, बाय एयर हो, अगर हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गया, दैट इज नोन एज इंपोर्ट्स। व्हाट इज द मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपोर्ट? बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट आप बनाते हो, एंड शिपिंग बिल। ये शिपिंग बिल जो है, जो कस्टम हाउस में जो कस्टम हाउस एजेंट्स होते हैं, दे आर द ऑथराइज्ड एजेंट्स। कस्टम हाउस का जो एजेंट्स होते हैं, दे आर द ऑथराइज्ड एजेंट्स, दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ द कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स। कस्टम डिपार्टमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड, दे आर वेरी मच अवेयर विद दैट, एंड दे प्रिपेयर ऑल द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। यू हैव टू टेक देयर हेल्प, और यू कैन टेक देयर हेल्प, और आप खुद भी उसमें अगर आपको पूरी नॉलेज है, यू योरसेल्फ कैन आल्सो डू। यही एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स है। जब आपका एक्सपोर्ट करना होता है, शिपिंग बिल इज द मेन डॉक्यूमेंट, और डीजीएफटी उसमें से एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी, ईपी कॉपी, उसको मांगती है। उसी के बेस पे आपके जो भी आगे के क्लेम्स होते हैं, जो कुछ भी होता है हर जगह पे, उसको वो क्लियर किया जाता है। नाउ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द इंपोर्ट्स। जैसे एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल चाहिए, द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हियर इज बिल ऑफ एंट्री। जैसे हमारे कंट्री में मटेरियल आ जाता है, कस्टम्स में आ जाता है, कस्टम्स आपको इन्फॉर्म करती है आपके सीएचए के थ्रू कि मटेरियल आ गया है, एंड यू हैव टू क्लियर द कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अगर पेमेंट करना है या विदाउट पेमेंट, जो भी है वो आप लोग उसके साथ क्लियर कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग, एंड कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सपोर्टर, जो आपको माल भेजता है, वो आपको चाहिए होता है। नाउ अब गवर्नमेंट क्या करती है, इतना सारा चीजों को आप लोगों को एक्सपोर्ट करना। हमारा मेजर टारगेट है एक्सपोर्ट। वी शुड डिक्लाइन द इंपोर्ट्स एंड एनहांस द एक्सपोर्ट्स। हम लोगों का बेसिक जो नारा है हम लोगों का यही है कि हमको एक्सपोर्ट करना है। वी हैव टू मेक द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट क्या, आप इधर लोकल करते हो, द सेम थिंग यू कैन गो फॉर द अब्रॉड ऑल्सो। आप अब्रॉड में एक्सपोर्ट कीजिए, यू विल अर्न अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज ये आपका हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भाई आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट रिजोर्स का एनहांसमेंट हुआ है, तो गवर्नमेंट वांट्स टू गिव यू सर्टेन इंसेंटिव्स। हर एक इंसेंटिव देना चाहती है, ताकि आपको वो इंसेंटिव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके काम आए। So one of the scheme of that is merchandise export from India scheme. पर इसके पहले 914 का पॉलिसी में there were almost you can see फोकस प्रोडक्ट एक स्कीम था, फोकस मार्केट एक स्कीम था, फोकस प्रोडक्ट एक आइटम का लिस्ट था, 1000-1500 आइटम का लिस्ट था। अगर वो आइटम आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक इंसेंटिव स्क्रिप्ट मिलता है। मार्केट एक पर्टिकुलर मार्केट था, साउथ अफ्रीका एक मार्केट है, ओमन एक मार्केट है, थाईलैंड एक मार्केट है, जर्मनी एक मार्केट है। तो इस मार्केट के अंदर, उस मार्केट कस्टम्स के अंदर अगर माल जाता है आपका, वहां से क्लियर होता है, यू गेट वन स्क्रिप्ट, एक इंसेंटिव स्क्रिप्ट आपको मिलता है। वो मैं बताता हूँ कि वो कैसा। अच्छा, ये मर्चेंट पहले क्या था, किसी भी कंट्री में आइटम वाइज और कंट्री वाइज था। नाउ इन द 1520 पॉलिसी इट हैज कम टू वन। इट हैज कम टू वन फॉर पूरा जो है कंट्री 3 ग्रुप्स में बांट दिया, ए, बी एंड सी। 3 ग्रुप्स में है, और वो 3 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज में आप लोगों को कम से कम 4500 आइटम एंड अबव यू कैन एक्सपोर्ट, मोर देन 4500 एंड अबव। लिस्ट इज देयर in our book. You can export, you can trace out any of the items and you can make the exports. अब वो उसमें क्या है कि वो लिस्ट में आपको ITC HS वाइज आपको दिया हुआ है। इंडियन ट्रेड एक क्लासिफिकेशन, एक आइटम का जो है कोड होता है, यूनिक कोड होता है, एक 8 डिजिट का। उस कोड के अंतर्गत वो चैप्टर से ही स्टार्ट होता है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 94 तक के चैप्टर से। वो चैप्टर के हिसाब से उसमें कोड नंबर दिए हुए हैं आपके पर्टिकुलर आइटम का। उसमें जनरलाइज कोड भी है और स्पेसिफिक कोड ऑफ दी आइटम भी है। उस आइटम का कोड आपको अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में और इनवॉइसेस में मेंशन करना बहुत जरूरी है। व्हेन यू मेंशन ऑल दीज थिंग्स देन ओनली यू कैन गो फॉर दी एक्सपोर्ट्स। अब ये सारा स्कीम इसको करके
आप जब एक्सपोर्ट कर देते हो, व्हेन यू गो फॉर द एक्सपोर्ट, यू डू द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद में आप उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हो, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस में सबमिट करते हो। हम लोग एक स्क्रिप्ट इशू करते हैं, A4 साइज में एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट होता है, वी इशू ए स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट जो है दैट इज जस्ट लाइक ए रेवेन्यू। अब मान के चले कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, उसमें परसेंटेज दिया हुआ, आप इस फलाने आइटम को एक्सपोर्ट करोगे, इस ग्रुप कंट्रीज में 5% है, 2% है, 3% है, जो भी आपका रेट रहता है उस FOB वैल्यू ऑफ FOB वैल्यू मीन्स व्हाट? फ्री ऑन बोर्ड मीन्स इट इज एक्सक्लूडिंग फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट और इंश्योरेंस माइनस करके आपको जो अमाउंट मिलता है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2%, 3% जो भी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आपको इशू कर दे। व्हाट इज द स्क्रिप्ट? सिंपल एक छोटी सी आपकी व्यापारी भाषा में समझा देता हूं मैं आपको कि स्क्रिप्ट कुछ नहीं है। हम लोग जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करके आप एप्लीकेशन, हम लोग आपको स्क्रिप्ट इशू करते हैं। अगर मान के चले कि वो 10 रुपए का स्क्रिप्ट है, आपका कोई माल कस्टम्स में आ गया है और आपको वो माल क्लियर करने के लिए कस्टम बोलता है कि 12 रुपये ड्यूटी भरो। आप कहोगे ये 10 रुपए की स्क्रिप्ट रखो, ऊपर से 2 रुपए का ये चालान रखो और मेरा माल क्लियर करो। सिंपल प्रोसीजर आपका ये स्क्रिप्ट ये करने का, यूटिलाइज करने का। और ये स्क्रिप्ट अगर आपको जरूरत नहीं है, यू कैन सेंड ट्रांसफर द स्क्रिप्ट ऑन योर लेटरहेड टू एनी ऑफ द पर्सन्स। और आप चाहो तो जरूरी नहीं कि आपको पूरा स्क्रिप्ट ट्रांसफर करना है। अगर आपको 50 रुपए का स्क्रिप्ट है, अगर मेरे को 25 रुपए का स्क्रिप्ट चाहिए, मैं 25 रुपए स्क्रिप्ट लेके आपसे मैं ले लूंगा और मैं 25 रुपीज उसका खर्चा करके मैं वापस आपको स्क्रिप्ट वापस करूंगा। बिकॉज इवन इफ आई कीप, आप सोचोगे अरे तो 50 का दे रहा हूँ, 25 बाकी वो ट्रांसफर, वो उससे ज्यादा कस्टम्स उसको अलाउ नहीं करेगा। सो यू आर वेरी सेफ इन दैट। ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अगर आपको नहीं जरूरत है, यू कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन द वैलिडिटी पीरियड, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। और आपको यूज करना है, यू कैन ऑल्सो यूज द स्क्रिप्ट। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, पहले हम लोगों का एक लिस्ट था जिसमें बहुत सारे सर्विसेज दिए हुए हैं, प्रोफेशनल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, बहुत सारी ऐसे 12-13 सर्विसेज है। पहले इस स्कीम में भी द सेम उसी तरह का स्क्रिप्ट इशू करते थे। उस समय वो सिर्फ एक्चुअल यूजर कंडीशन में था, जिसके पास स्क्रिप्ट है वही उसको यूज कर सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट, होटल वाले हैं या टूरिज्म वाले हैं, तो इन लोग वो स्क्रिप्ट लेके अपने को, उनको जो आईडी डेकोरेटर्स या फर्नीचर्स या जो भी उनको ये कंप्लीट करना, उसके लिए वो लोग यूज करके उसको इंपोर्ट करके, वो लोग ड्यूटी फ्री क्रेडिट में इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते थे। नाउ इन दिस 1520 पॉलिसी दिस हैज आल्सो बिकम ट्रांसफरेबल। ये स्क्रिप्ट भी ट्रांसफरेबल हो गया है। आपको जरूरत नहीं है, दूसरे किसी को जरूरत है वो ले लेगा। एनीबडी कैन परचेज द स्क्रिप्ट एंड एनीबडी कैन यूज इट। अभी होता क्या है कि आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको सपोज प्रीसीडिंग 3 years का एक्सपोर्ट, ये स्टार स्टेटस होल्डर्स है। दीज आर द स्टेटस होल्डर्स हु कैन गेट दिस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आप मेरे ऑफिस में, जब आपका $3 million का अगर आपका एक्सपोर्ट हो जाता है, तो आप लोगों को हम लोग एक स्टेटस सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेटस सर्टिफिकेट देती है। स्टेटस सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि आप एक आदरणीय और वेल एस्टैब्लिश्ड एंड रेस्पेक्टेबल एक्सपोर्टर हो। सो गवर्नमेंट आप पे बिलीव करती है कि आप कोई गलत काम नहीं करोगे, इसलिए आपका कस्टम्स में मटेरियल जाता है या DGFT में आप आते हैं, टेकिंग यू एज, अगर कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स रह भी जाता है तो वी यूज टू क्लियर दैट थिंग्स। हम उसको, उसके लिए आपका केस 10 दिन या 15 दिन कहीं भी DGFT में रोका नहीं जाता है, बिकॉज यू आर ए स्टेटस होल्डर। आपके पास भरोसा किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे ला के दे दोगे। हाँ, अदर देन मेजर डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई एक मेजर डॉक्यूमेंट है, आप जब एक स्टेटस बन जाते हो तो you know the policy better than the government. When you become a status holder, you become a better policy maker and better license holder from government rather than government of India. तो इसलिए ये सर्टिफिकेट आपको कस्टम्स में भी काम आता है। कस्टम्स में आपका बॉन्ड LUT देने की क्लियरेंस के टाइम में, जब बॉन्ड LUT देना उसमें क्लियर हो जाता है। एक्साइज वाले आपको क्लियर कर देते हैं। कौन को रेलवेज है वहां पे क्लियरेंस होता है। मतलब ऑल द बैरियर्स आर एक्सपोर्ट्स में क्लियर होता है। आप लोगों को किसी तरह का या इंपोर्ट में आपके ऊपर किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज ड्यूटी एक्सटेंशन स्कीम। जो पहले वाले स्कीम जो बताया था, दैट वाज कमिंग अंडर चैप्टर 3 ऑफ द पॉलिसी बुक एंड हैंडबुक, वो आगे मैं बताऊंगा। नाउ दिस इज द ड्यूटी एक्सटेंशन स्कीम
दिस कम्स अंडर चैप्टर 4 ऑफ आवर बुक्स। इसमें एडवांस ऑथराइजेशन, अब क्या होता है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर, दो तरह के एक्सपोर्टर होते हैं, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। तो ये लोग, इनको अभी रॉ मटेरियल, इनका एक आपका इंडस्ट्री है, आपके इंडस्ट्री को एक एक्सपोर्टर ऑर्डर आया है कि आप कह रहे हो कि मेरे को फ्लेक्सिबल ट्यूब्स एक्सपोर्ट करने हैं प्लास्टिक के, ऑर्डर आ गया आपके पास पता चला कि हो सकता है हमारे कंट्री में उस क्वालिटी का मटेरियल ना हो, आप उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से अगर तो ड्यूटी पे करना है, बट अंडर दिस स्कीम आप मेरे से एक ऑथराइजेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, यू विल टेक द ऑथराइजेशन फ्रॉम अस, यू विल इंपोर्ट द मटेरियल एंड एक नॉर्म से उसका, एक हम लोगों का हैंडबुक में, बुक्स में नाम है, अगर उसमें अवेलेबल है या नहीं भी अवेलेबल है तो भी हम लोग आपको एक ऑथराइजेशन इशू करते हैं। उस ऑथराइजेशन के बेस में ड्यूटी फ्री मटेरियल जो आपको रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, उसमें एक नॉर्म से सपोज 1 किलो एक्सपोर्ट करने के लिए 1.05 kg आपको चाहिए, 10% वेस्टेज में चाहिए, तो आप वो मटेरियल इंपोर्ट करके उसका रॉ फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के यू कैन गो फॉर दी एक्सपोर्ट विद इन अ टाइम फ्रेम। ये कंडीशनल है, अगर आपने एक बार इंपोर्ट कर लिया, यू हैव टू गो फॉर द एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करके उस केस को क्लोज करवाना है फ्रॉम DGFT एज वेल एज फ्रॉम द कस्टम्स, दोनों जगह से आपको वो केस को क्लोज कराना होता है। दिस इज एन एडवांस ऑथराइजेशन, एनुअल एडवांस भी होता है, साल भर में भी आपको अगर चाहिए तो आप एक लाइसेंस लेके आप बार बार 2-2 लाख 4-4 लाख के लिए कहाँ DGFT चक्कर काटूं मैं, एक ही बार लाइसेंस ले लिया, अब उसको कंप्लीट कीजिए एंड गेट द केसेस क्लोज्ड। ये एनुअल एडवांस लाइसेंस है। दिस इज बोथ द थिंग्स, हम लोगों का एक बुक है, उसमें नॉर्म्स है, प्रोडक्ट वाइज नॉर्म्स है, इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक है, केमिकल्स है, फूड आइटम्स है, स्पोर्ट्स आइटम्स है, हर तरह के आइटम्स उसमें है एंड यू कैन ट्रेस आउट द एनी आइटम मोर देन, आई थिंक इट इज, एक ही इसमें कम से कम 2,500-3 हजार से ज्यादा आइटम है एक ही कैटेगरी में। सो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट हैज पुट ऑल द एफर्ट्स टू पुट ऑल द आइटम्स जो एक नॉर्मल इंडस्ट्रीज जो है, छोटा से छोटा इंडस्ट्री भी बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकता, ऐसे इतने नॉर्म्स हैं। देन कम्स द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ये ऑथराइजेशन, इसी ऑथराइजेशन को पुराने जमाने में हम लोग 1991 में लाइसेंस करके बुलाते थे, वो लाइसेंस राज खत्म करके हम लोग इसको ऑथराइजेशन बोलते हैं। टू बी इन ए, जैसे आप लोग पहले कोई नौकरी बोलता था, आजकल नौकरी नहीं बोलता, प्लेसमेंट्स बोलते हैं, तो दैट लुक्स गुड। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑथराइजेशन। पहले हम लोग लाइसेंस बोलते थे, लाइसेंस को खत्म करके अभी हम लोग इसको ऑथराइजेशन या स्क्रिप्ट बोलते हैं, विच इज डिग्निटेबल और अच्छा भी लगता है बोलने के लिए। ये भी सेम थिंग है, एडवांस ऑथराइजेशन विद एक्चुअल यूजर कंडीशन एंड DFIA इज ट्रांसफरेबल। सपोज इसमें जो साइन नॉर्म्स हम लोगों का एक बुक है, उसमें अगर आपका आइटम कवर होता है, यू कैन टेक द ऑथराइजेशन फ्रॉम अस, यू हैव टू मेक द, यू कैन इंपोर्ट इट एंड एक्सपोर्ट इट, और आप उसको केस क्लोज कराने के बाद में अगर आपका रॉ मटेरियल बचता है या लाइसेंस उस ऑथराइजेशन में कोई इंपोर्ट बचता है और उसके वैलिडिटी रहती है, यू कैन इजीली ट्रांसफर इट टू द अदर पर्सन हु रिक्वायर्स इट, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। यू हैव टू गेट द केस क्लोज्ड फ्रॉम कस्टम्स एज वेल एज फ्रॉम द DG, पहले DGFT देन कस्टम्स, उसको क्लोज करने के बाद में आप ये इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है और आप इसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो सिंपली विथ वन लेटरहेड। आपका एक लेटरहेड होना चाहिए जेन्युइन, उस लेटरहेड में मैं फलाने को मैंने ट्रांसफर कर दिया है, दैट्स ऑल। मटेरियल कैन बी ट्रांसफर और इवन द लाइसेंस, ऑलमोस्ट सभी लोग ऑथराइजेशन को ही ट्रांसफर करते हैं। और ये इंपोर्ट ड्यूटीज जो एग्जम्पशन होते हैं, ये ड्यूटीज है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग, ये सारे ड्यूटीज उसमें एग्जम्प्ट हो जाते हैं। यू नीड नॉट पे एनी ड्यूटी एंड यू कैन गेट द क्लियरेंस, बट कंडीशन यही है आपको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। यू हैव टू गो फॉर द एक्सपोर्ट, इट इज मैंडेटरी विद इन द टाइम बाउंड फ्रेम। अगर आप केस को नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, किसी कारणवश आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इन दैट केस यू कैन पे द ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट। अगर इंपोर्ट किया है, जितना भी मटेरियल इंपोर्ट किया है, ड्यूटी इंटरेस्ट पे करके यू कैन क्लोज डाउन द केस फ्रॉम बोथ साइड्स एंड देयर आफ्टर यू आर फ्री फॉर द। ये जेम ज्वेलरी है, जेम ज्वेलरी द आइटम्स, इसमें एडवांस लाइसेंस भी है और एक रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस भी इशू होता है, बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट वेस्टेड विद जॉइंट DGFT नागपुर, ऑल दिस गोज टू जॉइंट एडिशनल DGFT मुंबई। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो मेरा ऑफिस आएंगे तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स। देन DFIA के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया।
सेंसिटिव आइटम्स, ईपीसीजी स्कीम, यह एक्सपोर्ट प्रमोशन